particular ionic equilibria or studying ionic equilibria is primarily required in addition to chemical equilibria for two reasons. Pehla, its extensive applicability in biological system. Yeah. Extensive application in biological system. See, all our body processes, including release of various hormones and enzymes, are triggered by uh, one or the other ionic equilibrium phenomena. बात समझ में आ रही है? और किसी एक पर्टिकुलर आयन का कंपोजिशन हमारे बॉडी में या बॉडी फ्लूइड्स में कम होता है एंड या बढ़ता है, दैट ट्रिगर्स द या मतलब किसी आयन का वो कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, सिंपल आयन भी हो सकता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, इनका कंसंट्रेशन बढ़ने से या आयोडीन का आयोडाइड का कंसंट्रेशन बढ़ने से और सिक्रीशंस इंक्रीज कर सकती हैं या डिक्रीज कर सकती है, यानी इनिशिएट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए द ambient concentration of ions are required. ठीक है? The simplest example which is very much known to us is goiter disease जो होता है, right? ये थायराइड ग्लैंड के नॉन सिक्रेटिव होने की वजह से होता है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा होता है, इसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. Deficiency of iodine leads to malfunctioning of thyroid gland. That doesn't, I mean, if the concentration of iodine is not proper, that gland does not get appropriate signal to secrete the thyroid gland. ठीक है? Similarly, I mean, all our biological processes, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, they all are triggered by one or other ionic equilibrium scenario. ठीक है ना? That is where this process, the ionic equilibrium, has a exclusive usability. And it's not only our body, that is human body, which is all the processes are triggered for all animals, even for plants. See, ionic equilibrium is a key, or it is the concentration of one or the other ion which triggers various biological processes. Am I making sense? So we need to study the ionic equilibria or the basics of ionic equilibria in detail, primarily because of its applicability in extensive applicability in biological system. ठीक है? If we have better control over or better the best understanding of ionic equilibria, we can devise various things, various tools which can be help us in regulating many of the dysfunctionalities of our body. Basically जो भी medicines वगैरह हैं हमारे ना, whatever medicines we see or we have generated, they are there to make those equilibrium bring those imbalanced reactions या imbalanced equilibriums back to balance. ठीक है?
वो चेंज्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीस्टोर करने के लिए these things are applied. That is how the medicines are manufactured, or that is how the medicines has been devised. Is it okay? और इसको दूसरा रीजन, ये तो हो गया एप्लीकेबिलिटी, हमें क्यों पढ़ना होता है, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सारे कॉमन फीचर्स तो हमको पता है, लाइक वी हैव स्टडीड इन केमिकल इक्विलिब्रिया. As a chemist, why do we need to study it as a like separate topic, or we can say separate subtopic? That's primarily because from part of treatment, ठीक है, treatment as in physical aspect of solving the problem related to ionic equilibria, it requires two spatial approaches. पहला जो approach होता है, that is it requires, or you can say physical problems pertaining to equilibrium requires special treatment in terms of simultaneous equilibrium systems. And second one is excess of self-ionizing solute. Sorry, self-ionizing solvent. ठीक है. So the problems of ionic equilibria are unique in two manner. पहला ये होता है यूनिकनेस इसका कि all the cases are going to be cases of all the ionic equilibria physical problems are going to be the case of simultaneous equilibrium. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी हो जाती है कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है सेल्फ आयनाइज कर सकता है, और एक्चुअली उसका सेल्फ आयनाइजेशन ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया क्रिएट करता है. ठीक है. सो एवरी टाइम वी हैव अ सॉल्वेंट, नॉट ओनली सॉल्यूट्स वगैरह के डिसोसिएशन को हमको देखना होता है, हमें सॉल्वेंट के भी डिसोसिएशन को देखना होता है. ठीक है. सो सॉल्यूट के डिसोसिएशन के साथ साथ सॉल्वेंट के डिसोसिएशन, सॉल्यूट के आयंस के साथ साथ सॉल्वेंट्स के भी आयनिक पार्ट्स जो होते हैं उनको हमको ध्यान में रखना होता है. ठीक है. जैसे HCl हमने डाला वाटर के अंदर, तो HCl H प्लस और Cl माइनस तो देगा ही देगा, साथ में वाटर भी H प्लस और OH माइनस देगा. ठीक है. तो अब H प्लस वाटर भी दे रहा है और HCl भी दे रहा है. Now, how these are going to get balanced, or how the equilibrium is going to get reached, is something which we are going to look at uh, in detail in this chapter. Not only HCl, काफी सारे types के acids and basically electrolytes uh, के details को we are going to see. Okay, so this is the very basic idea of ionic equilibria.
ठीक है। और सी एक्सटेंसिव एप्लीकेशन में एक और एग्जांपल भी लाइक जो कि आप लोग इजीली समझ सकते हो शायद, डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड जो चीज होती है ना, HCl का सिक्रीशन व्हेन वी ईट in our stomach, that is again triggered through ionic equilibrium. वैसे सारे के सारे प्रोसेसेस मैंने बोला है कि दे आर गोइंग टू बी initiated and done by ionic equilibria itself. ठीक है, okay. uh, let us now start discussing about uh, or taking a more insight of ionic equilibria. Okay. See what happens, like यहाँ पर है क्या, आयंस का इक्विलिब्रियम होना है। आयनिक इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, वेरियस आयंस, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ आयंस, आयंस के सोर्सेस क्या होते हैं। फ्रॉम वेयर कैन वी गेट आयंस। We need to understand sources of ions, right? Ionic equilibria है तो we need to understand sources of ions, isn't it? और can we guys name sources of ions? Ions के क्या क्या sources हो सकते हैं? Okay. अभी तक जो भी हम कंपाउंड्स जानते हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they can be categorized into certain categories, right? What are those categories? Chemical bonding के basis पर we can categorize all the compounds in 2 or 3 broader categories, isn't it? One is called electrovalent compounds, right? और ionic compounds, इनका नाम ही आयनिक है। आयनिक इनको क्यों बोलते हैं? आयन से बनते, आयन से बनते हैं या फिर upon suitable conditions they break down into ions, right? Now the thing is, except this, ये कैटेगरी नॉन पोलर कोवैलेंट, these are non ionizing, non ionizing कंपाउंड्स, ठीक है। बाकी ये दोनों जो ऊपर की कैटेगरी होती है, दिस इज आयनाइजिंग, these are ionizing compounds. Is it okay? हेलो, यस सर। ठीक है। Now the next thing is कि
जनरली आयंस हमको जो फर्निश करते हैं, जो भी चीजें हमको आयन फर्निश करते हैं, ठीक है, दे आर कैटेगराइज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और जो आयंस फर्निश नहीं कर सकते हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो ये आयनाइजिंग कंपाउंड्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज और आर said to be electrolytes or electrolytic compounds. Are we getting this point? So we have whether a particular compound is a source of iron or not, it can be categorized as electrolytic and non-electrolytic, ठीक है। नोमेनक्लेचर्स हमको ध्यान में रहने चाहिए, क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। You can very simply be asked which among them are electrolytes, electrolytic compounds, and this is non-electrolytic. यहाँ पर शुरू में 2-3 नाम actually important हैं, so you should be very much aware of it, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट है, जैसे NaCl, CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी होंगे दे ऑल आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलाइटिक। सिमिलरली HCl, HBr, HI और H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सारे एसिड या बेसिस कोई भी ले लेंगे हम लोग, एसिड बेसिस या सॉल्ट्स, ये कोई भी ले लेंगे हम लोग, दे ऑल आर गोइंग टू बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं मेनली नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सुगर, और ये शुगर है, ग्लूकोज है, और भी यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना, प्रोटीन्स जो होते हैं वो थोड़े से पोलर होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जनरली नॉन पोलर होता है, ठीक है। पोलैरिटी प्रोटीन्स वगैरह की भी काफी कम रहती है। कार्बोहाइड्रेट की पोलैरिटी जो होती है, मतलब उसकी होती है बट वो भी कम होती है प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मोस्टली नॉन पोलर होता है, ठीक है। सो कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन हम ले लेते हैं, that is going to be a non-electrolyte. Not only that, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब हम पढ़ते हैं तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी रहेंगे हमारे, जैसे सारे हाइड्रोकार्बन्स और इंक्लूडिंग ये एरोमेटिक कंपाउंड्स विदाउट डेरिवेटिव्स, दे ऑल आर फुल्ली नॉन पोलर, ठीक है। और नॉन पोलर होने की वजह से दे आर गोइंग टू बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जितनी ज्यादा उसमें हम पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू फंक्शनल ग्रुप्स, दे टेंड टू बिकम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सो जनरली ऑल आर, आई मीन मोस्ट ऑफ, not most of, but many organic compounds or non-polar organic compounds are non-electrolytes, whereas all ionic compounds and even polar organic compounds fall into electrolytic compound series. I hope it is clear. Hello, ठीक है। हेलो, Yes, sir. is it clear to all Yes, of sir. you electrolytic compounds का definition? Okay. अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड जो होते हैं, वी हैव सर्टेन बाइफरकेशंस ऑफ इट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्ट। सो
इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? दोज कंपाउंड which is compound which are capable of generating ions either in solution or in molten. ठीक है। सी गैसियस स्टेट में ना मोस्ट ऑफ दी चीजें जो होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाती हैं। ठीक है। गैसियस स्टेट में काफी सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएंगी। सो वी डोंट टेक गैसियस स्टेट एज सच, वी जनरली टेक इलेक्ट्रोलाइटिक डेफिनेशन में सॉल्यूशंस या मोल्टेन स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट यानी आयंस जनरेट कर पाता है उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है। गैसियस फेज में भी करता है तो चलेगा, आइदर इन मोल्टेन स्टेट और इन गैसियस फेज। बट गैसियस में ऐसा होता है कि काफी सारी चीजें नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं अपॉन वेरी हाई टेम्परेचर। अगर गैसियस में सबको कन्वर्ट करके हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स लगभग किसी ना किसी टेम्परेचर पर ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो देयर फॉर गैसियस वाले डिस्टिंक्शन को हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं। डेफिनेशन के टाइम पर वी प्राइमरली डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन क्रिएशन और make when solution is made whether it is able to furnish ions or not, or and whether in molten state it is able to furnish ions or not. ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट those compounds incapable of furnishing ions either solution or in molten state. Again, electrolytes are further categorized into they are categorized in on the basis of there are two different criterias on the basis of which electrolytes can be categorized. ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स पहला कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया जो होता है इसका वो होता है अ, एक होता है एक्सटेंट के बेसिस पर, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया जो होता है वो होता है, एक क्राइटेरिया हमारा होता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा क्राइटेरिया जो रहता है वो होता है
एक्चुअली दूसरा कैटेगराइजेशन जो होता है, इसके थ्रू हमको वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली मिलते हैं, और दूसरे वाले में हमको मिलते हैं ट्रू एंड पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कैसे इन्वायरमेंट में ब्रेक कर पाता है, ठीक है, व्हाट इन्वायरमेंट डज इट रिक्वायर इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन, ठीक है, दैट इज समथिंग which defines the other categorization. So system and surrounding. So the second categorization is on the basis of surrounding conditions for dissociation. Surrounding condition for dissociation. ठीक है, पहला एक्सटेंट ऑफ, सॉरी, एक एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, इसको पहला, इसको दूसरा बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड सराउंडिंग कंडीशन फॉर डिसोसिएशन। सराउंडिंग कंडीशन फॉर डिसोसिएशन के बेसिस पर दो कैटेगरी जो हमारे बनते हैं, दे आर टर्म्ड एज ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, पहला होता है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट का नेचर होता है they can furnish ion, they can furnish ions uh, in molten state, molten state, as well as in solution। ठीक है, अब इन ये कहाँ पर देंगे, कैसे सॉल्यूशंस में देंगे, सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए, जनरली ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए जिसमें सॉल्वेंट जो होगा आपका दैट शुड बी अ पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर में ये डिसॉल्व ही नहीं करेंगे। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे नेवर गेट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर इलेक्ट्रो ये सॉल्वेंट। ठीक है, so they are going to furnish ion in molten state as well as in solutions। ठीक है, all ionic compounds are its example। ठीक है, second categorization in this is potential electrolyte। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, एक छोटी सी चीज और, they are also known as, they are also termed as ionophores। ionophores, ठीक है, नाम ध्यान में रहना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। दे मे नॉट आस्क यू ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, दे सिंपली आस्क यू आइनोफोर्स। एंड दूसरा जो होता है उसको आइनोजेंस बोलते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट को, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। Those compounds
furnace ions only in solution phase but not in but not molten state, not in molten state, are known as potential electrolytes. Okay, they are also termed as they are also termed as ionic ठीक है. Examples: all polar covalent compounds, all polar covalent compounds. ठीक है, ये कोई भी मोल्टेन स्टेट में आयंस फर्नेस नहीं करता है. दे फर्नेस आयन ओनली इन पोलर सॉल्वेंट्स. मेल्ट करेंगे बट आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे. ठीक है, और उनका ये होता है आयनिक सॉलिड्स का, दे मेल्ट एंड दे डिसोसिएट इन आयंस. मेल्टिंग के साथ ही दे डिसोसिएट इन आयंस एज वेल. मेल्ट करेंगे बट मोल्टेन स्टेट में भी ये आयंस में डिसोसिएट नहीं करते हैं. दे स्टिल एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ extent of dissociation. ठीक है, we have categorized electrolytes into two segments again, that is strong electrolyte, strong electrolyte. Strong electrolytes नाम से थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए हम लोगों को. स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? Dissociate almost completely. ठीक है, जो भी चीज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. known as strong electrolytes. ठीक है, okay. दूसरे जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जनरली इसमें ऐसा होता है एनीथिंग विच इज डिसोसिएटिंग मोर देन 95%. ठीक है, डिसोसिएशन डिसोसिएशन और वी कैन से मोर देन 95%, 95% dissociation. ठीक है, implies strong electrolyte. We call it, or we consider it to be completely dissociated.
considered as considered completely dissociated. ठीक है, ये 100% तो कोई डिसोसिएट हो नहीं सकता है. नथिंग कैन डिसोसिएट 100%, राइट. And I mean, in the end, it is going to be a equilibrium. ठीक है, इट इज अ इक्विलिब्रियम, सो 100% तो हो नहीं सकता है. इसकी वजह से वी हैव सेट अ लिमिट ऑफ 5%. 5% कम भी डिसोसिएट है तो भी उसको हम लोग कंप्लीटली डिसोसिएटेड मान लेते हैं. 95% डिसोसिएशन इज गुड इनफ. चीजें वैसे काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ऐसे भी, मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हमको ऐसे भी पता है जो मोर देन 99.99, इवन मच लार्जर देन दैट, 99.4 to 5 times 9 तक भी वो डिसोसिएट होते हैं. बट जनरली 95 के ऊपर को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने लगते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. Strong electrolyte completely dissociate. Partial, partially dissociating electrolytes are weak electrolytes, right? Partially dissociating electrolytes are termed as weak electrolytes. ठीक है. Okay. There is yet another categorization of electrolytes जो हमने डिस्कवर किया है, and that is the C type, types of ions furnace. ठीक है, टाइप्स ऑफ आयन फर्नेस या behavior or nature of the electrolyte itself, as in interacting behavior of the electrolyte with another electrolyte. How a electrolyte is going to interact with another electrolyte, on the basis of that we have a third categorization as well. ठीक है. So see, देखो ये ऊपर वाली जो दो कैटेगराइजेशन है ना, ये मोस्टली आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट्स के लिए है. नोइंग अ कंपाउंड, हाउ कैन यू कैटेगराइज इट. ठीक है. अब ये लास्ट वाला जो है ना, दिस इज ऑफ मोर प्रैक्टिकल यूज. ठीक है. सो C is nature interaction interaction between electrons.
on the basis of nature of interactions between electrolytes, we have certain categorizations, and that categorization is acid, bases, and salts. We have acids, bases, and salts. We have categorized all the compounds into these three categories: acid, bases, and salts. ठीक है? अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, दैट इज समथिंग which is a point of discussion, and our next segment is going to be that particular thing. Salts क्या होता है ये हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर थियरी जो भी हमारा डेफिनेशन होगा, एसिड एंड बेस का चाहे जो भी डेफिनेशन हो, और सॉल्ट का डेफिनेशन जो होता है ना वो एम्बिगुअस नहीं है, वो हमेशा एक ही होता है, और वो ये होता है कि एक एसिड जब एक बेस को न्यूट्रलाइज करे या एक बेस जब एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उससे जो एंटिटी प्रोड्यूस होती है दैट एंटिटी इज सॉल्ट, ठीक है. सो एसिड न्यूट्रलाइजिंग अ बेस और अ बेस न्यूट्रलाइजिंग अ एसिड generates a salt. The salt is always or salt is always produced from reaction of acid and bases, or acid and bases together reacts to produce a salt. ठीक है. So salt का definition जो है वो हमेशा fixed है, ठीक है. However, acid and bases के definitions जो हैं they have been given by different scientists differently, ठीक है. Therefore, I mean those definitions has been there to incorporate more and more compounds into this category, ठीक है. जैसे पहला डेफिनेशन है उसमें कुछ चीजें एसिड और कुछ चीजें बेस में कैटेगराइज हो रही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो ना एसिड में कैटेगराइज हो पा रही थी ना बेस में कैटेगराइज हो पा रही थी ड्यू टू सम रीजन और द अदर रीजन. And then we had to extend, or somebody else came, some other scientist came and he extend the definition of acid and bases. उसमें भी कुछ चीजें छूटी, तो फिर फाइनली किसी थर्ड साइंटिस्ट ने एक और होलसम डेफिनेशन क्रिएट किया. बट इसमें अब ये है कि कोई भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है. कोई भी डेफिनेशन अकेले कंप्लीट नहीं है. हाँ, एक डेफिनेशन है जिसमें मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाती हैं. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. और सॉल्ट्स का तो मैंने बता दिया डेफिनेशन आपको क्या होता है. देयर इज वन मोर कंपाउंड, मतलब एक कैटेगरी और भी होती है. कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकती हैं, ठीक है. दे आर नोन एज एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक कंपाउंड्स, ठीक है. एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक, ठीक है. इसका क्या होता है, सॉल्ट्स का डेफिनेशन बता देता हूँ और एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक का डेफिनेशन बता देता हूँ. एसिड एंड बेसिस के लिए we have a set of theories which we are going to discuss, the theories of acid and bases, ठीक है. So we are going to discuss those theories. How do we categorize a thing, a acid or a base? We have three prominent theories: Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, and Lewis theory, ठीक है. Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory and Lewis theory. अभी तक आप लोगों को एसिड या बेसिस के जो भी डेफिनेशंस पता होते हैं, H प्लस एंड OH माइनस फर्निश करने वाला डेफिनेशन जो होता है, that was a definition given by Arrhenius. That is part of Arrhenius theory. So you just know about Arrhenius acids and Arrhenius bases. There are more types of acids and bases which are there, which you need to know.
Bronsted-Lowry acid base, Lewis acid and base. There are few more hard acids, soft acids, uh, categorization. Then there are two not so prominent, Yusanovic and Lux-Fluid categorization of acids and bases. So we are going to look into these things, and then we are going to shift. I mean, these are going to be theoretical part, informative part, and then we are going to treat into like mathematical treatment of uh, these things, mathematical treatment of equilibrium. ठीक है, mathematical treatment of equilibrium. और mathematical basic treatment करने के बाद फिर I'll get into like फिर से थोड़ा सा जनरल बिहेवियर पर आऊंगा, एंड ट्रेंड्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेक अप इज, this was introduction part. The second thing which we are going to take up is सॉल्ट का डेफिनेशन क्या था? Acid and bases reacts, neutralize each other, ठीक है. एम्फोट्री क्या है, एम्फीप्रोटिक क्या है? एनी electrolyte that produces electrolyte, any electrolyte that can behave as acid as well as base. ठीक है. are known as amphiprotics और एम्फोट्रिक. ठीक है. जो एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है उसको एम्फीप्रोटिक या एम्फोट्रिक बोलते हैं. इज इट क्लियर? सो ये दो डेफिनेशंस तो हमको क्लियर हो गए. बाकी एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन आर गोइंग टू कम थ्रू वेरियस थ्योरीज व्हिच वी आर गोइंग टू डील नाउ. सो सेकंड सब टॉपिक इज एसिड बेस थ्योरी. एसिड बेस थ्योरी. First theory. The first theory in this regard was Arrhenius theory. ठीक है. Arrhenius theory. It was propounded in between 1880 to 1890, and this theory has very simple definition, or it has very simple this thing.
definitions for acids and bases, but again the thing is like सिंपल चीजें हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, इसकी वजह से ये थियरी जो थी इट हैज अ लिमिटेड दिस थिंग। ठीक है, तो थियरी क्या थी वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरेनियस थियरी फॉर एसिड एंड बेसिस सेज दैट, पहला चीज, एनी इलेक्ट्रोलाइट that furnaces furnaces H plus ion, एक्चुअली H प्लस आयन अभी के लिए लिखो, और साथ में ये एक्चुअल फॉर्म जो इसका होता है दैट इज H3O प्लस आयन। इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन upon being dissolved into water। ठीक है, then it is going to be known as into water, dissolved into, being dissolved into water, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं that furnaces H plus ion in aqueous solution। Either we use this thing or we can simply use in solution। ठीक है, aqueous solution का मतलब ये होता है when dissolved in water, right? So any electrolyte that furnaces H plus ion or hydronium ion upon being dissolved into water are known as or are termed as acids, are termed as acids। Termed as acids, or rather we prefer to call them Arrhenius acids। So Arrhenius theory में acids are anything which furnishes H plus or hydronium ion in aqueous solution। Base जो होता है that is going to be any electrolyte that furnaces OH minus ion or hydroxyl ion, this is also termed as hydroxyl ion, upon being dissolved in water, or simply we can say in aqueous solution। ठीक है, in aqueous solution are termed as are termed as bases। So that's Arrhenius theory। एंड सॉल्ट सबके हिसाब से एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज जब करते हैं दे प्रोड्यूस सॉल्ट। ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी में एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर
न्यूट्रलाइज each other to produce salt and water always। ठीक है, बाकी सारे में हो सकता है सिर्फ सॉल्ट ही बने, इसमें बट हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक के पास H+ है, हाइड्रोनियम आयन है, और दूसरे के पास हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल जो होता है, ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं आपको वाटर। H3O+ and OH- will combine together to form H2O. Is it okay? Yes, Hello. sir. Okay. So this is, I mean, all about Arrhenius acids and bases. We can take certain examples. For example, acid यहाँ पर किसको बोल सकते हैं हम लोग? Acid क्या क्या हो सकते हैं? सो ऑल एसिड जो भी आप जानते हो, सुनते हो, जनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स बेसिकली जो भी हैं, HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, H2SO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2, HNO3, HNO2, HNO2. All these are going to be termed as अर्हेनियस एसिड्स। क्यों? क्योंकि सबकी टेंडेंसी सेम है, H+ वाटर सॉल्यूशन में फर्निश कर देगा, एंड देयरफॉर दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज अर्हेनियस एसिड्स। ठीक है। सेकेंडली, बेसिस क्या रहेंगे? दे आर गोइंग टू बी एसिड्स। हाइड्रोक्सिल आयंस विजिबल रहने चाहिए, हाइड्रोक्सिल नहीं है तो फिर अर्हेनियस बेस नहीं होगा। ठीक है, सो ऑल अल्काइल्स NaOH, KOH, RbOH, cesium oxide, sorry, sodium hydroxide, MgOH whole twice, calcium hydroxide, SrOH whole twice, BaOH whole twice, whole twice, FeOH whole thrice, Ale, Ale, OH whole thrice, ZnOH whole twice. All of them are visible hydroxyl containing compounds are bases। ठीक है, ये वाटर में जा करके अपना H2O जो है वो दे ही देते हैं, therefore they are termed as bases। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नोट करने के लिए हमको, कि ये जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर रखा है ना, इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर कोई चीज H+ फर्निश कर देता है लेकिन बिना वाटर में डिसॉल्व हुए, जैसे गैसियस फेज में किसी ने कर दिया, ठीक है, H+ फर्निश, इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज अर्हेनियस एसिड। बात समझ में आ रही है? अगर वो वाटर में करता है, एक्वस सॉल्यूशन में करता है, तभी उसको बोलेंगे। Am I making sense? जैसे HCl को अगर हम लोग हीट करते हैं, वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड मोल्टेन स्टेट में नहीं, बट HCl या HBr
गैसियस स्टेट में दे कैन डिसोसिएट एज H plus and Br minus and H plus and Cl minus. ठीक है, HCl HBr कैन डिसोसिएट, राइट. वो गैसियस स्टेट में H प्लस फर्निश कर रहा है, बट स्टिल गैसियस स्टेट में वी कैन नॉट कॉल देम अर्हेनियस एसिड. ठीक है, so the presence of aqueous solution is must. ठीक है, key point is the H plus ion, the H3O plus or OH minus ions must be furnished in aqueous solution. ठीक है, अगर aqueous solution नहीं है तो फिर उनको हम एसिड या बेस कंसिडर नहीं कर सकते हैं. यानी सिर्फ H प्लस अगर जनरेट हो जाता है, ये हमेशा वाटर में ही जनरेट होगा. ठीक है, if H plus ions are furnished in gaseous phase, then it does not qualify as acid. Similarly, OH minus generation in gaseous phase does not qualify it as basis. I hope this is clear to us. Hello. Yes, sir. Okay. Post Arrhenius theory. There is something called as Bronsted-Lowry theory. ठीक है, Bronsted-Lowry theory में we have अनदर कॉन्सेप्ट. देखो, इसमें ये होता है कुछ विजिबल बेसिस जो होते हैं ना, या कुछ विजिबल चीजें जो होती हैं जिनके पास कुछ स्पेशल है कैटेगराइजेशन, कुछ चीजें हैं but they cannot be categorized as acid or basis. ठीक है, I'll give you an example, two examples, so that you can very easily relate to it. For example, ये H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोबोरिक एसिड. ठीक है, और ये हाइड्रोबोरिक एसिड जो होता है ना, ये वाटर के अंदर जा करके और H प्लस आयन में डिसोसिएट नहीं करता है. ठीक है, इट डज नॉट फर्निशेस H प्लस आयन, इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन. ठीक है,
ये H प्लस आयन में डिसोसिएट होता तो कुछ इस तरह की चीज प्रोड्यूस करता, H2BO3 माइनस। आप लोग को ध्यान होगा शुरू में शायद मैंने बताया था H3BO3 जो होता है वो इस फॉर्म में रहता है, बोरॉन बॉन्डेड टू लाइक दिस, ठीक है। और इसका चौथा ऑर्बिटल जो होता है बोरॉन का वो वैकेंट रहता है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन से लोन पेयर से एक्सेप्ट करता है, और दिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू BOH4 माइनस, या फिर अगर ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो H4BO4 माइनस बन जाएगा ये, और या फिर टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगा इसके पास, OH 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 एंड OH, फिर था माइनस चार्ज ऑफ B, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, एंड देयरफॉर इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अर्हेनियस एसिड, ठीक है। वाटर में इसको डालेंगे तो इट इज नॉट एबल टू फर्निश H प्लस आयन, rather it accepts OH minus ion if it is present in that solution, ठीक है। Therefore it is not self capable of generating H plus ion, therefore it cannot be H plus ion or H3O plus ion, therefore it cannot be termed as Arrhenius acid, ठीक है। there is another example, amines जो होते हैं ना RNH2, they are known bases, we know that they work as bases, न्यूट्रलाइजेशन के काम में आते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, so they work as bases that we are aware of, but ये पानी के अंदर में क्या है, H plus ion नहीं फर्निश करते हैं, amines do not furnish H plus ion on being dissolved in water, ठीक है। So because of this definition, this cannot be termed as base either, not a base, ठीक है, not a Arrhenius base, Arrhenius base नहीं है ये, और ये क्या है, Arrhenius acid नहीं है, not Arrhenius acid, not Arrhenius acid, ठीक है। सो Arrhenius acid and bases ये हो जाते हैं, और कुछ एग्जांपल्स। सो बेसिकली सोचना हमको इसी तरीके से, क्या वाटर में ये H प्लस फर्निश करेगा, वाटर में H प्लस नहीं फर्निश करता है तो इसका मतलब है कि वो अर्हेनियस एसिड नहीं है, और OH माइनस नहीं फर्निश करता है तो अर्हेनियस बेस नहीं है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली वो किसी और कैटेगरी ऑफ एसिड बेस में जरूर फॉल करेगा, बट इसमें नहीं फॉल करता, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया गैसेस में नहीं, तो HCl गैस जो है दिस कैन ब्रेक डाउन इजिली इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, बट यहाँ पर वाटर नहीं है, ठीक है। क्योंकि वाटर नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको एसिड नहीं बोल सकते हैं। HCl gas is not an acid, not Arrhenius acid, not Arrhenius acid, ठीक है। Okay. Let us now go back to the second definition, definition B or theory B, that is called Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory. This was given or proposed somewhere in 1923.
It is also known as, or also termed as, also termed as protonic theory. प्रोटॉनिक थियरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ H प्लस के एक्सचेंज के बेसिस पर डिफाइंड है, ठीक है। ये सिर्फ बोलता है कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक जो H प्लस दे सकती है और दूसरी जो H प्लस ले सकती है, ठीक है। अब वो किस फेज में ले रहा है, एक्वस फेज में ले रहा है या फिर और गैसियस फेज में ले दे रहा है, डजेंट मैटर। बस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक जो H प्लस ले सकती है, दे सकती है, और दूसरी जो H प्लस ले सकती है। जो H प्लस देता है उसको एसिड, चाहे वो किसी फेज में दे, सॉल्यूशन में दे, गैसियस में दे, बिना गैसियस में दे, जैसे देना है उसको दे, बस इसको H प्लस से मतलब है। तो अगर कोई चीज H प्लस दे रहा है, H प्लस देने की कैपेबिलिटी है, तो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एसिड, और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड, Bl एसिड, ठीक है। और दूसरी दुनिया की चीज जो है वो क्या करती है, वो H प्लस को एक्सेप्ट करती है। तो जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो जाता है, बन जाता है। जैसे इस समझो कंपाउंड के पास, Ha के पास ये H है जो कि ये H प्लस के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। तो Ha ने H प्लस दे दिया, अब बन क्या गया ये H प्लस एंड A माइनस, ठीक है। Ha ने H प्लस दे दिया, बन गया क्या, A माइनस। नाउ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये H प्लस दे सकता है। ये जो नई एंटिटी बनी हमारे पास, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बेस की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी क्या रहेगी, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, इजंट इट। अगर Ha से H प्लस निकल के A माइनस बन रहा है, तो ये A माइनस के पास कैपेसिटी होगी कि ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके Ha बना ले, अंडर सुटेबल कंडीशन ऑब्वियसली। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है। सो Ha को हम लोग एसिड बोलते हैं, और A माइनस को हम लोग वी कॉल इट कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ Ha, ठीक है। A माइनस इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ Ha। दूसरी चीज ये, अगर A माइनस को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, A माइनस मेरा बेस है, तो ये Ha जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। मतलब कोई भी बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है, तो H प्लस के एक्सेप्टेंस के बाद वो क्या बन जाएगा, जो भी बेस था उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और H प्लस डोनेट करने के बाद या लीव करने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद जो एंटिटी बनेगी वो क्या बोली जाएगी, कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड, ठीक है। दिस विल बी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस A माइनस, ठीक है। बेस A माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, Ha है, और सॉरी, Ha का कॉन्जुगेट बेस क्या है, A माइनस है। एम आई मेकिंग सेंस? कोई भी एसिड है उसमें से H प्लस को निकाल दिया, बचेगा वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और बेस में अगर H प्लस ऐड कर दिया हमने, तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। सो सी, वाटर जो है उसके पास हमारे लिए एक यूनिक टेंडेंसी है, H प्लस कैन, H2O कैन लूज वाटर,
sorry, H2O can lose H plus to become hydroxyl ion, and H2O can be formed by losing one H plus from H3O plus ion, right? So H2O is an acid of conjugate base OH minus, या फिर H2O is conjugate acid of base OH minus. H2O is conjugate acid of the base OH minus, या फिर OH minus is a conjugate base of acid H2O. Similarly, H2O is a conjugate base of H3O plus ion या H3O plus acid, हाइड्रोनियम आयन एसिड या हाइड्रोनियम एसिड, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम H2O is conjugate base of hydronium acid, or H3O plus is conjugate acid of H2O base, right? If we consider H2O as a base, then is hydronium ion is going to be its conjugate acid, और अगर ये एसिड है तो ये उसका conjugate base है. Are we able to understand this? यस सर. ठीक है. सो आज के लिए अभी डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ आज के दिन, बस ये बता करके कल मैं डेफिनेशंस और एग्जांपल्स एंड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इसके ऊपर कराऊंगा, ठीक है. प्रोटोनिक थ्योरी, क्योंकि सारी चीजें H प्लस के ट्रांजेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं. एसिड जो है वो प्रोटोन डोनर होता है, बेस जो है वो क्या होता है, प्रोटोन एक्सेप्टर होता है. जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को वो बेस, जो डोनेट करे प्रोटॉन वो एसिड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटोनिक थ्योरी और प्रोटोजेनिक थ्योरी, ठीक है. और साथ में यहाँ पर कॉन्जुगेट फॉर्म होता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है. कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट और कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट, acid and bases are produced in pairs over here. Clear? So we'll discuss more about it in tomorrow's lecture, tomorrow morning. Fine? ओके सर. Okay. Bye for now. Have a सर nice. थोड़ा ऊपर Thank you, नीचे ना sir. नोट करना मत. अच्छा, नोट नहीं किए हो? सर डिस्कनेक्ट हो गया था अभी. कोई नहीं, नोट कर लो. पिछले पेज पर जाना पड़ेगा या इसी पेज का नोट नहीं किया है? सर पिछले पेज पे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के पहले. ओके. यस सर यही करना. हो गया नोट? नहीं सर ये करने का नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेता. ठीक है, मतलब इतना ही है या और भी नोट करना है? नहीं सर इतना ही.